নমস্কাৰ গাইজ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মধ্যান্তৰৰ আজিৰ এপিছ'ডলৈ। আজি আমাৰ গেষ্ট আকাশ ৰায়। তেখেত এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু কলেজত থাকোঁতে তেখেতক চিনি পাইছিলোঁ। তেখেত আমাৰ টিচাৰ আছিল। আশা কৰিছোঁ বেলেগ এপিছ'ডছৰ দৰে আজিৰ এপিছ'ডটোও আপোনালোকে আপোনাই ল'ব, গ্ৰহণ কৰিব আৰু নিজৰ থটছ আৰু নিজৰ ছাপোৰ্টটো বজাই ৰাখিব। আহক আজিৰ এপিছ'ডটো ষ্টাৰ্ট কৰা যাওক। তো কি হ'ল, কথাটো হ'ল যে আপোনাক ছাৰ বুলি মাতিম না দাদা বুলি মাতো? এতিয়াতো মই সেইটো ৰোলত নাই না, সেইটো ৰোলত নাই, দাদা বুলিয়ে মাতো আৰু। দাদা বুলি যি যেনেকৈ তুমি কমফৰ্টেবল। হয়, তো গাইজ অসমীয়াত মানে যি ইচ্ছা আৰু অসমীয়া হিন্দী মাল্টিলিংগুৱেল কৰিলে হয়, যেতিয়া যোনটো ভাল পায়। তো গাইজ আমাৰ লগত আজি আছে আকাশ ৰায় দাদা। দাদা মই পলিটেকনিকৰ পৰা চিনি পাওঁ, আমাৰ ছাৰ আছিলে, দাদা বুলি মাতি আছোঁ আৰু এতিয়া পলিটেকনিকৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ। ফাৰ্ষ্টলি তো আপোনাৰতো ৰিলছবিলাক বহুত মটিভেশ্যনেল, সঁচাকৈ কওঁ। মটিভেশ্যনেল মানে কি, আমাৰ চবৰ এটা আজিকালিৰ দিনত কোনটো এটা ল'ৰা হ'ব বা ছোৱালী হ'ব মানে তাৰ মানে ফুৰিব যাম আৰু নিজৰ ভেহিকেল লৈ কিনে সেই লাইফষ্টাইলটো যে ইমান বেছি মানে প্ৰিচ হৈছে না আজিকালিৰ দিনত। আগত মানুহে তীৰ্থ কৰিব গৈছিল, আজিকালি এইটোৱে হ'ল মডাৰ্ণ তীৰ্থ আৰু। আচ্ছা আমাৰ শ্ব'টোৰ নাম হ'ল মধ্যান্তৰ। মিনিংটো বেচিকেলি হিন্দীত মধ্যান্তৰ মানে হ'ল ইণ্টাৰভেল বা দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন, যোনটো মোৰ মাই টেক অন দিছ ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টু অপিনিয়নছ। Okay. Difference between two people, but coming together of opinions, you can say that. So that is the thing. So firstly, like a brief introduction at diyak apnar bare. মোৰ ব্ৰিফ ইন্ট্ৰডাকশ্যন হিচাপে কেনেকৈ, তুমিতো এতিয়া ক'লা যে তুমি মোক ছাৰ হিচাপে লগ পাইছিলা, ৰাইট? হয়। চ' তেতিয়া মই আজিৰ পৰা কিমান 2 বছৰমান আগত, ৰাইট? চ' মই পাছ আউট কৰিছোঁ ডিগ্ৰী in the year 2014. So after that মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এজ এ ফিল্ড মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়াৰ। চ' বেচিকেলি মই ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছোঁ, মই এজন ইঞ্জিনিয়াৰ চ' ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰ এজন। মই যেনেকৈ ক'লোঁ হেৰিৰ পৰা 15ৰ পৰা মই ফিল্ড মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে এৰিকছনৰ কাৰণে কাম কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। চ' 1 year অন দ্য ফিল্ড আছিলোঁ কমপ্লিট। মোৰ পষ্টিং আছিল কোকৰাঝাৰ। What was like মানে হেৰিবিলাক জব ডেছক্ৰিপশ্যনটো আছিল আমাৰ যিবিলাক টাৱাৰ্ছ আছে, মোবাইল টাৱাৰ। চ' এৰিকছন ৱাজ দ্য বেচিক কোম্পানী যোনে তেওঁলোকক ইকুইপমেণ্ট ছাপ্লাই কৰিছিল। ফোনবিলাক কেনেকৈ কানেক্ট হয়, আমি যে ফোন গম পোৱা ন ছেটআপটো। চ' সেই ছেটআপত কি থাকে, আমি চাব লাগে যে এই টাৱাৰবিলাক যে আছে সিহঁতে কাৰেক্টলি মেইনটেইন কৰি আছে নে নাই। আমাৰ কাম আছিল যদি কিবা ফল্ট আছে সেই ফল্টবিলাকক ৰেক্টিফাই কৰা, আৰু যদি কিবা নতুন ইনষ্টলেশ্যন আহে সেই নতুন ইনষ্টলেশ্যনবিলাকো কেৰি আউট কৰা। তেতিয়া এৰাউণ্ড 2015 এণ্ড আৰু 16 আৰম্ভণি, যেতিয়া 3G ফাৰ্ষ্ট সময় আছিল। 4G চোন 2016 আহিল চাগে আমাৰ ইয়াতে মানে হেৰি কৰিছোঁ, কিন্তু একদম যিবিলাক ৰিম'ট আৰু মই কৈ আছোঁ কোকৰাঝাৰৰ সেনেকুৱা এৰিয়াবিলাকত 3G নাছিল, নতুন টাৱাৰ গৈ আছিল সেইবিলাক। তেতিয়া মোৰ হেৰিত মই যেতিয়া আছিলোঁ এৰাউণ্ড এই 1 বছৰৰ ভিতৰত আমি 183 নে কিমান 3G কানেকশ্যনছ দিছিলোঁ থ্ৰু আউট কোকৰাঝাৰ। আৰু ৰেঞ্জটো আছিল, তুমি এইখন ব্ৰিজখন গম পোৱা না, য'ত এই যে বালি চালি যে উঠাই যে, কি নাম ব্ৰিজখনৰ, এইখন কোকৰাঝাৰ হেৰি সোমোৱাৰ আগতে এইটো তুমি টাৰ্ণটো ল'লা কোকৰাঝাৰৰ ফালে যোৱাতে, তাৰ নপোৱাতে যে এখন ব্ৰিজ এখন আছে, কি পাহৰি থাকিলোঁ নামটো, চাম্পা নে কি, টাৰ্ণটো মানে কাৰিগাঁৱৰ কথা। কাৰিগাঁও নপৰা হয় এনেকৈ। আচ্ছা, তাতেতো চম্পাৱতী ৰিভাৰ বেল্ট আছে, সেইটো চম্পাৱতীৰ পৰা আছিল একদম শ্ৰীৰামপুৰলৈকে। শ্ৰীৰামপুৰ মানে একদম বৰ্ডাৰ আৰু পাৰ হৈ যাব লাগে অলপ, সেইখিনি মানলৈকে আমাৰ নেটৱৰ্ক আছিল। তাতে এইবিলাকৰ আৰু সেই তেনেকুৱাকৈ চাব লাগে, পিৰিয়ডিক মেইনটেনেন্স কৰিব লাগে। সেইটো মানে হাউ ৱাজ দ্য জব, আই উইল টেল ইউ। হাউ ৱাজ ইউৰ লাইক, মই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফ্ৰেছাৰ হিচাপে তুমি সোমালা, সোমাই তোমাক লাগিব যে মই কামটো শিকি লওঁ। তুমি একদম মানে যদি 8 hours তোমাৰ কল থাকে, তুমি 8 hours বেছি অবভিয়াছলি 12 hours হৈ যায়, তুমি গমেই নাপাবা। বিকজ তোমাক শিকাতে যদি 1 ঘণ্টাৰ জব ডেছক্ৰিপশ্যন থাকে, তোমাক সেইটো শিকাতে লাগিব ½ an hour। বাই দেট টাইম তুমি আৰু বেলেগ মানুহ লগাব লাগে। চাপ'জ ঠিক আছে, কামটো কেনেকুৱা, তোমাৰ লগত বহুত কেইজন মানুহ থাকে, তুমি মেনেজমেণ্টটো এটা বহুত ডাঙৰ স্কিল, ঠিক আছে। তুমি সোমাই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা হেৰিবিলাক পাবা, আৰু সেইবিলাক মানুহ কেনেকুৱা, সিহঁতৰ একো
হেৰি নাই, তোমাৰহে এইটো দায়িত্ব যে মই এইটো জব মোৰ আছে, মই কমপ্লিট কৰাব লাগিব। এতিয়া তুমি যিবিলাক মানুহ হেণ্ডেল কৰিবা, ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ এজ এ নিউ বি, তোমাৰ একো মানুহৰ লগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তুমি সেই মানুহজনক প্ৰথমতে কনভিন্স কৰাব লাগিব যে তুমি যিটো কৰাই আছা সেইটো কৰিলে হৈ যাব বস্তুটো, বিকজ হি ইজ এডামেণ্ট, হি এডামেণ্ট থাকিব যে আৰু মানে নতুন মানুহ বাচ্চা নাজানে, পাত্তা নিদিয়ে এনেকুৱা সি নাজানিব মই এইটো কিয় এনে মোৰ টাইম ৱেষ্ট কৰোঁ, কিন্তু তুমি তাক কনভিন্স কৰাব লাগিব যে নাই তুমি এইটো কৰা, এইটো কৰিলেহে বস্তুটো হৈ যাব, ৰিজাল্টটো পাম। সেইবিলাক থাকিব, সেইবিলাক ষ্ট্ৰাগলছ তুমি লাহে লাহে গম পাবা যে এনেকৈ মানুহজনক টেকেল কৰিব লাগিব। বাট আফটাৰ এ টাইম তোমাৰ কি হৈ যাব যে এই যে ফোনৰ যে এটা ফোবিয়া নিচিনা হৈ যায় তোমাৰ, ঠিক আছে, বিকজ 24/7 তোমাক ফোনটো অন ৰাখিব লাগিব, ইউ কেনট মানে ইট ইজ মানে কৰ্পৰেটতকৈ বেছি আৰু মানে তুমি মানুহৰ লাইফটো আজিকালি চোৱা, ফোনৰ হেৰিত যদি আমি ফোনটো অলপমান হেৰি কৰি দিওঁ আঁতৰাটো মানুহ এজনে ফাংচন কৰিব নোৱাৰে, এনজাইটি আহি যায়, ফাংচন কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যদি ক'ৰবাত আমি টাৱাৰ নাথাকে, লগে লগে ফোনৰ ওপৰত ফোন। এইটো মমেণ্টত ছাৰ এটা কথা কৈছে যোনটো ৰেকৰ্ড হোৱা নাছিলে বাই মিষ্টেক, যে এই নন ষ্টপ অনবৰত ফোন আহি থকাৰ যোনটো এটা হেবিট লাগি গৈছিল, এটা এডিকশ্যন লাগি গৈছিল, বা এটা মানে এনেকুৱা আৰু এটা কানেক্ট হৈ গৈছিল যে ফোনটো বাজিবই। চ' ইভেন এট টাইমছ ৱেন দেৰ ৱাৰ ন' নেটৱৰ্ক এৰাউণ্ড অৰ মে বি দেৰ ৱাৰ ন' কলছ কামিং ইন, he and traveling all those villages or jot asura pasura manu nai, he used to he was in some kind of a place mentally where he used to think that his phone is ringing, and it was a really dark place. Let's just think it's almost similar to dementia. লাষ্ট 2-3টা পডকাষ্ট যেতিয়া কৰিছো দিনটো মোৰ ফোনটো নাবাজিব, ঠিক আছে, যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰিম ওৱান আফটাৰ ওৱান লাইক ইট ইজ লাগি থাকিছে। So you were telling about this phobia, it's a really that thing started happening to me. So আৰু তোমাৰ সেইটো কাৰণে আৰু জবটোৰ কাৰণে আৰু the people around you, I told you the people around you, that is one big headache. Controlling a driver, a rigger we used to call, not one, and there will be 2-3 riggers, and then your boss and his boss, everyone after you, so that gets into you, and then you cannot to dekhabo nora na ibilak manuhok, because toi jodi ihotok tor frustration to dekhai asa, it will be like leave him, aru then there is a lot of back bitching also, hitu to korbo nora, aru so you have to try to fit in, বহুত hitu bostu te heri koribo lagibo, manu bilage je koy talwa chate omuk henten, but that is not hey manujonok toy good books thakibo lagibo, jodi ajon toy bosor নহলে toy favors na pabi, favors you don't get holidays for, you don't get this what do you call leaves for appearing exams and all, you cannot go for appearing exams, to etu job koribo aisa na aru beleg job koribo aisa, so for that period মই যদি সাপোজ 4টা এক্সামৰ অপশ্যন দিছিলোঁ তাৰে এটা ক'ৰবাত যাই এপিয়াৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ, সেইবিলাক হৈ থাকে। দেন আই ৱাজ থিংকিং কি তোৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপছতো তোৰ এফেক্ট কৰিব, কাৰণ তই আহিছ 10 ঘণ্টা কাম কৰি, তাৰপাছত তোৰ আৰু নাথাকে ক্ষমতা নাথাকে যে কাৰোবাক ভালকৈ কথা পাতিবি কিবা, চ' দেট হেপেন্স। তাৰপিছত নিজেতো ইণ্ট্ৰস্পেক্ট কৰি থাকা না যে কি কৰি আছোঁ মই, দেন ছাডেনলি হোৱাট হেপেণ্ড ইজ আই মেড এন এক্সিডেণ্ট। আমাৰ গাড়ীখন হেৰি হৈছিল, চ' মোৰ এই লেফ্ট হেণ্ড চাইডত মই ভৰিত দুখ পাইছিলোঁ, হাতত দুখ পাইছিলোঁ, মানে গাড়ী মানে চাৰি চাকালৈকে ঘূৰিব লাগিছিল। চ' তাতে কি হ'ল, মই হেৰি কৰিলোঁ, লিভ লাগিব। তাৰপিছত তেনেকুৱাকৈ মই ক'লোঁ প্ৰিফাৰেঞ্চ যে বঙাইগাঁও হ'লে ভাল হয়, আৰু এতিয়া আৰু হেৰিও আছে ভেকেঞ্চি যদি আছে মই অলপ ৱেইট কৰোঁ, বঙাইগাঁৱতে দি লওঁ। বাট দেন এটা আৰু হেৰি আহিল, তুৰাত যাব লাগে গোটেই, চ' সেইটো মই হেৰি কৰিলোঁ আৰু তুৰাটো মই যাব খোজা নাই ইমান হেৰিত। আৰু তাৰপিছত কি হ'ল, এই পলিটেকনিকৰো অপশ্যনটো খোলা আছিল তেতিয়া, দিছ ৱাজ এৰাউণ্ড 2017 বোধহয়, 17 ঠাণ্ডা দিনৰ তেনেকুৱা কিবা তেনেকুৱা। তেতিয়া এই হেৰিৰ কাৰণে মই তাতে এনেই গ'লোঁ আৰু যে এনেই আছোঁ তাতে হেৰি কৰিব পাৰোঁ, সোমাই যাওঁ। আৰু মই কি কৰিছোঁ, যেতিয়া এই গেপটো পাইছিলোঁ সেই গেপৰ সময়তে মই লগৰ কেইজনমানৰ লগত মিলি
আমি সৰু সুৰা কিবা কিবি বিজনেছ কৰি আছিলোঁ আৰু এইবিলাক যেনেকৈ অফিচ অফিচৰ পৰা কণ্ট্ৰেক্ট উঠাওঁ কাৰোবাৰ পৰা আৰু দেন হেৰি মোৰ এটা ফাৰ্ম আছে ঠিক আছে প্ৰপাৰ্টিশ্বিপ ফাৰ্ম আৰু নৰ্মেল আচ্ছা প্ৰপাৰ্টিশ্বিপ ফাৰ্ম আছে কি কামটো কামটো মোৰ এতিয়া বেচিকেলি এতিয়াৰটো কৈছোঁ এতিয়া মই এইবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক চাপ্লাই এইবিলাক কৰোঁ তাৰপিছত আৰু বাহিৰৰ যিবিলাক কোম্পানী আছে ছাপ'জ BRPLত আছে NTPCত আছে ৰেলৱেজত আছে ইহঁতে এইবিলাক CCTV কেমেৰা হওক প্ৰজেক্টাৰ্ছ হওক বহুত ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেম ইনষ্টলেশ্যন থাকে সেই ইনষ্টলেশ্যনবিলাক আমি কৰাওঁ প্লাছ মেইনটেনেঞ্চ থাকে ইয়াৰলি মেইনটেনেঞ্চ বুলি কয় সেই ইয়াৰলি মেইনটেনেঞ্চৰ প্ৰজেক্টবিলাক আমি সিহঁতৰ পৰা চাবত উঠাওঁ সেইবিলাক কাম কৰোঁ আৰু সৰু সুৰা প্ৰাইভেট যদি কাৰোবাৰ কিবা কাম থাকে আৰু কনজিউমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্সত নহয় আৰু বেছিক এইবিলাক জাষ্ট নৰ্মেল কাৰোবাক যদি হেৰি চেৰি লাগে এইবিলাক এটা টুকটাক সেইবিলাক কাম কৰোঁ আৰু মানে এক্সটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে ভাবি আছোঁ এইবাৰ আমি হেৰিটো নামিম আৰু লাহেকৈ কণ্ট্ৰেক্টৰ আচ্ছা এইটো ফাৰ্মৰ ডাইৰেক্ট টেণ্ডাৰ উঠাব ডাইৰেক্ট টেণ্ডাৰ উঠাম আৰু ফাৰ্মৰ নামতে তেনেকুৱাকৈ সেইটো ভাবি আছোঁ বাট ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে সেইটো কাৰণে বহুত সেইকাৰণে এতিয়া সেইটো এটা শ্ল' হেৰিত আছে আৰু জাষ্ট মোৰ পাইপলাইনত আছে বস্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মোৰটো মই চলাব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি দি বাট এনেকুৱা নহয় যে আই কেন এমপ্লয় মোৰ কিন্তু সেইটো মন আছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে ডাঙৰ কৰিব যেনেকৈ দুজন তিনিজনমান যদি মোৰ লগত মানুহ থাকে দেন আই কেন মোৰ যিখিনি বস্তু আছে মই কাৰণ মইতো একেলগে 10টা জেগাত যাব নোৱাৰোঁ যদি মোৰ লগত দুজন মানুহ থাকে আই কেন ডিভাইড কি তহঁতে আৰু এতিয়া মোক লাগিছে যে সেইটো বস্তু অলপ ইজি হয় আৰু মোৰ লাইফষ্টাইলটো শ্বুট কৰে লাইফ এটা থাকে থাকে মোৰ লাইফষ্টাইলটো শ্বুট কৰে চ' ভাবি আছোঁ সেইটোতে মই অলপমান ভালকৈ এতিয়া মানে পাৰ্চিউ কৰিম আৰু বাকী চলি আছে আৰু entrepreneurship if you call it entrepreneurship this is the basic definition na mane you are making ends meet আপনার কারণে কি হয় entrepreneurship like what defines very something really huge it is not something what I'm doing no then what is your definition like at what stage you would call yourself an entrepreneur if I'm building something and my what you call my setup or my design can employ like this place is a really good example of entrepreneurship. yes See, they're producing their own things and they have employed a lot of people. So and this is like basically a smooth functioning machine they don't need to do anything. They have created the system. So I would call this is what entrepreneurship should look like. মানে passive income মানে entrepreneurship মানে you don't have to actively invest your time and money. No, you have to invest your time. Like yate I think this place is like মানে it cannot expand beyond this point na. There are a lot of possibilities. You cannot say that this cannot expand beyond this. It can, but I think like the charm of it is because it is a little bit of underdog. Yeah. That is the charm. If it loses this, then I won't like you won't prefer come. this. Yeah, prefer this place. Yeah. See, that is what I would say that people like you or people like us, Our generation is like looking for places like this. So he has deliberately created something like this. He has designed it, catered it to our needs. Yes, he's designed it this way. But as time passes, he has to adapt. Right? He has to adapt. So I think it has a lot of possibilities from here on. This is just the starting. I think this place can be like not at this perfect place spot somewhere else. This can really like challenge Domi and all. Yes, no, that is a different point of view. Like I'm okay. Like I'm talking as a the catch of this place. Is I get it. It's that it's hidden somewhere. The hidden restaurant wala feeling. Like everybody knows, but it is like still hidden in plain sight. So yeah, and that this underdog wala feeling. This was everybody like this is like basic human nature. Whenever you see a match, you don't support any of the contenders from before. Whoever you see is losing, you are gonna root for him. Yeah, correct. And I think like এইটুক এটা বিজনেস অপরচুনিটি এটা ক্যাপিটালাইজ করার যে এইটু ওয়ালা ট্রিক টু ইট ইজ ভেরি নিউ টু আর ইন্ডাস্ট্রি বা আর সোসাইটি Yeah, you can say that. What's your take? I would think like this is, but it is not something that
would give you profits like this. You get it? You have to invest. Like he has been doing this for like I think 5-6 years. This place has been in existence like since like probably 2018 years. It's been 4 years like as we speak. So he has to like give that time. It's not like you create the setup and it will be up and running. Yes. So that is the thing. So I think people can monetize this opportunity, this our feeling of that we are going to root for the underdogs. That is one side of the business. Just I think that's a very tiny part of the So business. like for you, what sells the best? Like what sells this place? If the pizza won't be here and the burgers won't be here, this place, just this environment. No. Obviously, the food matters. This is a food food place, so the food has to be good. And but I think like in the like in Bongaigaon, Bongaigaon time देखी है like इदानिंग since like 2-3 years, there's been a huge influx. Like बाहिৰৰ পৰা মানুহ আহে just to spend money in Bongaigaon. বাহিৰৰ in the like adjacent সৰু towns পৰা মানুহ আহে. That's why you have so many malls and all. Yes, like they are not looking for like something cheap and tikau. Sasta and tikau nahi. They want something to like photogenic places. Yes. So that's another thing. Like Bongaigaon, like from the time that you speak of 2014-2015, by 2020 it has seen a drastic change in people's mindset also. Mindset, and I have seen Bongaigaon change like anything. Me too. Like I have my teenage years. I have been all my teenage years here, and it's been like teenagers in Bongaigaon right now. They are totally different than our generation. Like this, I have felt this. Like, why do I say that? Because see, I have seen a few batches from Polytechnic. Yes. And like also from other schools that I visit, from Bokrajar College and all. So I have seen batches of people, okay, and the connect that we used to have with our college. I'm just saying this in a sense of like how we used to be in a college. In that sense, I'm telling. So the connect that we used to have with our college mates, and the connect that you guys, your generation, have with the college mates are kind of like transactional, I feel. So you feel like yours was more connected, more deep rooted than us. Yeah, I feel that. Yes, I like don't necessarily disagree, but everything like this transactional relationship, transactions of let's say like best friends. People also try to like nowadays like that one best friend that you have. It's basically because you don't have a partner to share your boredom with. No, I feel the tag of a best friend is like unnecessary. You cannot tags. See, this is still something that it's just flashy. What is your take on, like, let's say if you would be in college now, everybody uses these kinds of labels. Okay. You would be an outcast, na? Yeah, definitely. So let's say there are people in today's schools, kids from this generation, who would rather be an underdog, who would rather be an introvert and have a normal deep rooted relationship, but that is not available at this point. Is that, you think, like, is that a thing? No, I don't think that's a thing, but I think that sort of mentality you're talking about, it is coming in. You see, I see a lot of like young kids, like 10 to 15 age group. They sort of, just the narration that you gave, they are introvert, they don't like actually socialize and all, and they become the outcast of a school or a class. So that kind of sort of thing is now becoming a trend, because see, most of that age group are already filled with their phones. They don't know anything beyond their phones, so they don't know how to connect with friends. Suppose on an emotional human level, on a human level, they don't understand that this is how you connect. And suppose they're from a nuclear family, like father, son and mother, they're only 3 people, and he doesn't go out in the evening to play with
Yes, The everything local is on kids, over the phone. he doesn't know how to interact. जब मेरे को खेलने जाना होगा किसी के साथ, मैं कैसे बात करूँ कि मुझे भी ले लो खेलने, हाँ मैं वो कैसे इंटरेक्शन शुरू करूँ, उसको आता ही नहीं है. हाँ तो वो क्लास में जाके भी वैसे ही रहता है. ठीक है, तो वो सॉर्ट ऑफ थिंग मैं देखता रहूँ, वो ज़्यादा हो रहा है आजकल. उस तरह का बच्चा पहले एक हुआ करता था, लेकिन अभी तेरे को क्लास में वैसा 5-6 दिख जाएगा जो किसी से मतलब नहीं रखता, वो अपना करता है. और ये कैटेगरी का, हाँ ये कैटेगरी का मैं देख रहा हूँ अभी कि मतलब. But is that healthy? That is not healthy. Is that sustainable even? वो सस्टेन करेगा लेकिन एक कॉस्ट पे उसको खुद को वो हार्म करेगा, आइदर फिजिकली या कुछ मेंटली भी कर सकता है, पता नहीं मेरे को. Burnout होता है. हाँ बर्नआउट तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक बंदे को बात तो करना पड़ेगा ना किसी से. हाँ और जब तू बच्चा होता है तो तेरे को नया नया चीज़ करने का ऑब्वियसली मन होता है, लेकिन तू क्या चीज़ के लिए डरता है आजकल कि मेरा मम्मी पापा डांट लेगा. और आजकल बच्चा लोग का मन में बचपन से ही मतलब ये भर दिया जाता है कि जो भी तू करेगा उसके लिए तू जिम्मेदार. तू नो नॉट तू जिम्मेदार है, हमारा माँ बाप का मतलब फेस इज अटैच टू यू, सो यू हैव टू थिंक. That has been like Indian households में, middle class Indians mostly, that has been a thing since ancient times. Like people take up courses they don't like just to please the society. सही बोल रहा है ये. हाँ. Not even the parents. The parents also want like their kids to go follow conventional lines to please the society. Otherwise आपका बेटा है, आपको अच्छी लड़की नहीं मिली, बहू नहीं मिलेगी, बेटी है बहू मतलब वो नहीं मिलेगा. क्या हो रहा है, एक ट्रेंड चला आ रहा है कि मतलब सबको टॉपर बनना है. देख ऐसा हो रहा है कि सबका बैक बेंचर वाला ट्रेंड भी है. हाँ वो तो मतलब तू स्कूल में जाके बन रहा है बैक बेंचर ना, लेकिन घर से सब चाहता है कि मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ. हाँ. तू देख मोएगा में इतना सारा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया. देख खाली एक बार तू चक्कर लगा, बहुत सारा तेरे को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मिलेंगे. क्यों हम लोग का गवर्नमेंट का स्कूल से इतना सारा गवर्नमेंट का स्कूल है, क्यों नहीं भेज रहे हो गवर्नमेंट स्कूल में इतना पैसा खर्च कर. स्टेटस सिंबल पहला आ गया, और दूसरा चीज़ कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीखेगा बचपन से, इंग्लिश मीडियम में जाएगा और उधर अच्छा टीचर मिलेगा उसको. और क्या मिल रहा है उसको वहाँ पे, क्या टीचर मिल रहा है उसको टीचर का छोड़ दीजिए, उसको एक मॉफ्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी हो रहा है, जो कि जब वो स्कूल का दुनिया से निकलेगा, रियल लाइफ देखेगा, तो ही विल बी शॉक्ड. अरे वो देख ही नहीं पाएगा, मैं तो नम हो जाएगा. मैं तो बोल रहा हूँ वो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं देख कंडीशन जानता हूँ. ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं. वहाँ पे ये सब क्लास 9 और 10 का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो वो सब हम लोग कराता है. तो ये सब स्कूल्स का, तो वहाँ पे तू बंदे को क्लास 10 में पढ़ रहा है वो या फिर क्लास 9 में पढ़ रहा है, उसको अपना नाम साइन करना होता है. वो अपना नाम साइन नहीं कर पाता. सोच वो क्लास 9 में है या फिर क्लास 10 में होगा, तो वो जितना भी बार ये आज का डेट है, इस साल का रजिस्ट्रेशन का बात कर रहा हूँ मैं. और ये हर साल होता है. ऐसा नहीं है कि मतलब दिस इज न्यूज़ टू मी, लाइक ऐसा कंडीशन है. ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है कि आदमी लोग चाहता है कि प्राइवेट स्कूल्स आए, लेकिन प्राइवेट स्कूल का भी हालत ऐसा कुछ खास नहीं है. ठीक है, वहाँ पे भी मतलब अगर 10 टीचर है, 10 टीचर में से 2 टीचर्स अच्छे होंगे, बाकी 8 तो मतलब ऐसे ही जा रहे हैं. और वो लोग भी चीप, उनको भी दोष देके फायदा नहीं है, बहुत ही चीप लेवल पे उनको भी रखा जा रहा है. तो उनका बेसिक सोर्स क्या है, हम लोग क्लास में ट्यूशन सिखाएंगे, हम लोग ट्यूशंस में सिखाएंगे. तो ठीक है, वो एक बिजनेस चलता है अपना. तो ये सब में जितना घुसते जाएगा ना, तेरा दिमाग खराब होते जाएगा. इसलिए खराब नहीं, लाइक अगर आप तेरे को मैं बताता हूँ, ये वाला जो हम लोग का मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल्स का फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता है. अगर गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली जैसा, हाँ दिल्ली इज बीन लाइक यू नो इन द बेंचमार्क लिटरली, वैसा अगर कर सके हम लोग, तो अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा भी. यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि बेसिक खराब कर, मुझे पता है ना, पूरा एक जनरेशन खराब हो रहा है. जो अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे को बोलना नहीं चाहिए. नहीं यू कैन गो अहेड. देख हम लोग के साथ, हम लोग के स्कूल अभी मेरा जितना भी है मोस्ट, हम लोग सब डिग्री पास कर चुके हैं सब कोई, और हम लोग के साथ में ही बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी टीचिंग लाइन में हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि सेम एज ग्रुप जूनियर वो सब टीचिंग लाइन में आ गए हैं. और मुझे तो पता है कि वो बंदा कैसा है, आई नो इट वेरी वेल. हाँ, तो ग्रूम भी वैसे ही कर रहा होगा, तो वो भी वैसे ही ग्रूम कर रहा होगा. और आज भी वो अगर किसी एक माइंडसेट पे है, सपोज तुम, मैं सीधा बोल रहा हूँ, सपोज तुम राइट विंग मेंटालिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और कोई एक बंदा लेफ्ट विंग मेंटालिटी से बिलोंग करता है,
तो तुम ना चाहते हुए भी तुम अगर अपना हर बात फेसबुक पे डाल रहा है या वो कर रहा है, Influence हो रहा है। इन्फ्लुएंस हो रहा है क्योंकि तुम उसका बच्चा है, टीचर, हाँ। तुम उसका टीचर है, वो तुमको देख रहा है कि ये बंदा तो ये कर रहा है, तो शायद अच्छा ही होगा, मुझे भी इसी में जाना लाइक चाहिए। वो एक बहुत इम्प्रेशनेबल लाइक एज है। हाँ, तो वो चीज़ फॉलो करेगा और उसको तो नहीं पता कि एक दूसरा साइड भी है, तो उसको दूसरा साइड भी दिखाओ। वो दूसरा साइड दिखाने का जिम्मेदारी भी तुम्हारा ही है क्योंकि तुम हाँ, उसको एक साइड teacher दिखा हो, रहे हो, हाँ। एक साइड दिखा रहा है। तो मैं सोचता हूँ वो सब मतलब चेंज करना चाहिए कुछ ऐसा कि हाँ अगर तुम इस जॉब प्रोफाइल पे है तो तुम ये सब काम मत करो क्योंकि इससे तुम्हारा स्टूडेंट्स तुम्हारा फॉलो है, राइट। तो सोच समझ के कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है या फिर प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है, ठीक है, तुम स्टैंड मत लो किसी भी चीज़ के लिए। अगर डायरेक्टली है तुम स्टैंड लो, मतलब लेकिन नहीं, योर पर्सनल लाइफ शुड बी डिफरेंट, लाइक डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तुम उस चीज़ को मिक्स मत करो। हाँ। उस तरह का कुछ करना चाहिए, नहीं तो फिर मैं तो बोल रहा हूँ पूरा जनरेशन खराब हो रहा है। आई थिंक अभी का जो लाइक टू बी ब्लंटली ऑनेस्ट, देयर इज अ बाइपोलराइजेशन। आई सी पीपल फ्रॉम माई जनरेशंस, इंटेलेक्चुअल्स विथ यू नो जिनके ओपिनियंस, दे हैव रीजंस टू बैक देयर ओपिनियंस एज वेल, एंड लाइक फॉर मी व्हाट मैटर्स मोस्ट इज every opinion should be heard and there should not be a verdict. ठीक है, आप राइट विंग को बिलोंग करते हो, आप लेफ्ट विंग को बिलोंग करते हो, आप न्यूट्रल हो, आप कंजर्वेटिव हो, दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन एंड दैट शुड बी रेस्पेक्टेड. इफ दिस थिंग you know is taken care of, then this society will sustain. Otherwise there will be mass frustration. पर प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम इस लेवल का सोसाइटी क्रिएट करने का और बिल्ड करने के लिए तुमको उस तरह का सिटीजन चाहिए पहले. तुम तो सिटीजन उस तरह का बना नहीं पा रहे ना, समझ रहे, और वो सिटीजन का कसूर नहीं है, ठीक है. उसको अगर उस तरह का फैसिलिटी मिलेगा तो बनेगा, लेकिन तुम उसको रोक दे रहे हो वहीं पे. हाँ, एक मतलब क्या बोलो, हम लोग बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लेवल. बिलो पॉवर्टी लेवल का बात ही छोड़ दो तुम, बिलो पॉवर्टी लेवल का बात ही छोड़ दो. वो लोग तो कहाँ हैं, हम लोग से शायद 10-15 साल या फिर ज़्यादा हो गए पीछे है, ठीक है. बाकी जो हम लोग बोलते हैं ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग लाइक टू कोप अप. कुछ ना कुछ आ रहा है नया, ये आ रहा है, ये नया वो हो रहा है. बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाला हो, सर ये प्राइवेट जॉब करने वाला, सबको कोप अप करना पड़ रहा है. वो लोग बस पिसा जा रहा है डे टू डे लाइफ में उसमें. और फिर एक सोसाइटी है जो सिर्फ कमा ही रहा है बैठे बैठे, उनके लिए कुछ नहीं. तो दिस हैज़ टू लाइक समवेयर सम अप करने के लिए कि ये बंदा भी वहाँ तक पहुँच पाए, ये बंदा भी वहाँ तक पहुँच पाए. ये सिस्टम खत्म हो रहा है धीरे 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 धीरे. अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा. हाँ, क्योंकि देख हम लोग में से ही बहुत कोई है जो अभी भी बोलता है कि एक सपोज दलित को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, राइट. तो मैं सोचता हूँ अगर रिजर्वेशन मिलेगा नहीं तो बंदा कैसे जाके कभी ऊपर का पोस्ट में बैठेगा. अगर वो नहीं बैठेगा तो उसका बच्चा कभी नहीं बैठ पाएगा, उसका बच्चा कभी नहीं बैठ पाएगा तो वो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा ना. तो वो कम्युनिटी तो वैसे ही रह जाएगा. समझ रहे हो तो बात. हाँ. किसी एक को तो मौका देना होगा, भले ही वो तुम लोग के लेवल पे तब डिजर्विंग ना हो, बट एक सोसाइटी को तुमको अगर क्या बोलते हो उसको, इगलिटेरियन सोसाइटी या कुछ वैसे कुछ, अगर तुमको मतलब वैसे उस सोसाइटी के लेवल पे तुमको लाना है हायरार्की छोड़ के, तो तुम एक्सेप्ट करो. बट हमारे यहाँ पे सब ये सब मतलब हवा हवा का बात है. इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि they need support. हाँ, ये वाला they have like obvious सा बात है. but like the contrary में इसका जो आपका वो दिया जाता है स्टेटमेंट या फिर आपका जो वो पक्ष रखा जाता है, that is all कि ठीक है, जो आपके रिजर्वेशन कास्ट है, सो जो लोग ऑलरेडी लाइक जिन फैमिलीज को, जिन जनरेशंस को, they have already got reserved jobs, so they are now above poverty line. They have had their chance, and I'm just pro putting forward both on the same table. So
उनको सपोज जो ये बेसिक आपको भी समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक दलित है या फिर एक एससी है एक एसटी है, उनके परिवार के सबको रिजर्वेशन से फायदा हुआ, तो क्या वो वापस उस रिजर्वेशन के हकदार है? अगर है तो फिर जो उनके सेम there's a different thing, that's the thing कि आप फाइनेंशियल बेंचमार्क पे या फिर फाइनेंशियल टेबल पे आप चेक करो, then there's a vast difference from financial and societal perspective. I still know if being a male, being coming from an upper caste, from a majority religion, I have inherited certain privileges in this society which will stick to me no matter how my character. I accept. That has to be accepted. Like आज के दिन में if I go to a corporate, maybe wherever you go in the society, still let's just say racism only, ठीक है, या जो ये fairness या स्किन कलर को लेके जो डिस्कशन है जो कि आज के दिन में लोग भूल चुके हैं, बिकॉज जैसे कि हाँ नहीं देयर इज, आप जब मेन फ्रेम पे देखोगे you get celebrities, you get influential people coming from all castes, coming from different facial complexions. You don't see celebrities with dark complexions, and you don't see celebrities with from how many yes, that is where that is where I'm coming to कि आज के दिन में भी if you go, जितना भी आप, there is a let's just say coming from a state, Bihar, coming from a state from northeast, ठीक है, you go to northern India, you will face distinctable discrimination. Yeah, that is true, very true. Anybody it is very undeniable fact. Yeah, अगर मैं जाऊंगा I won't have to face that because you're mainstream. I am mainstream and whatever privileges I said earlier on, that is there. But also I can connect with some people जिनके घर who is who has these privileges as me, but who has to उसके पास कोई साधन नहीं है to uplift his family, maybe till to survival के लिए also he is not equipped well enough, and hence this hatred against the minority, let's say this SC, ST, whichever, I'm not talking about the religious minority, I'm just talking about, so वो propagate करना easy हो गया, what मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो propagate करना easy हो गया, because when you are equipped, then you get आप उसके पास एक ऐसा पेडेस्टल नहीं है जहाँ पे वो बैठ के he can look it from the bird's eye view and he can see कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, तो मैं उसके लिए उस बंदे को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब, कुछ मैं ये बोल रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो पता नहीं चल रहा है कि वो कितना प्रिविलेज्ड है, वो वाला चीज तू रियलाइज कर रहा है, लेकिन बहुत लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि भाई मैं कितना प्रिविलेज से आता हूँ, और सेम ही बंदा एक ही साथ तेरे साथ ही बॉर्न हुआ होगा बट फ्रॉम ए डिफरेंट कास्ट, ही हैज टू फेस लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरीज, और प्लस उसके पास वो साधन भी नहीं होगा तेरे साथ कम्पीट करने के लिए, ठीक है। और तू जो बोल रहा है कि फाइनेंशियली एक बार अगर उसको मिल रहा है, एक बार अगर फिर से मिलना चाहिए कि नहीं, ऑन दैट पॉइंट आई एम सेइंग कि ये चीज तो हम लोग सबको दे रहे हैं, राइट। तुम्हारा अगर उस कंपटीशन को बीट करने का साहस है, इफ यू हैव दैट इन यू कि तुम उस कंपटीशन को बीट करो, देन आई थिंक यू डिजर्व। ऐसे ही फ्री फोकट में मैं सिर्फ इस कास्ट को बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे रिजर्वेशन दे दो, दैट इज नॉट सो, तब दैट इज द वेरी बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, राइट। अगर आप तो या तो फिर आप ये कर दो कि ये पोस्ट है, इसमें जैसे इफ यू आर अलॉटिंग सीट्स टू अ सर्टेन कास्ट, देन यू हैव टू अलॉट सीट्स टू एवरी कास्ट देयर इज, अदरवाइज यू कैन, लाइक आज के टाइम में इट वाज लाइक 70 years ago, there was a different thing, like financial stuff was different. Now in today's days and age, you have got political influence, powerful people coming from every caste, and once they have reached their potential, they are going selfish, they are not doing anything for their community and stuff. वो तो पॉलिटिक्स हो गया, तो उसके वजह से मेरा पॉइंट ये है कि आज एक जनरल कास्ट का, हायर कास्ट का
एक नौजवान जिसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, जॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, आई एम टॉकिंग कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी जॉब नहीं, देयर इज नो स्कोप इन द सोसाइटी, एंड गवर्नमेंट उसको, आप जाओगे ना तो गवर्नमेंट उसको कुछ कोई रिलैक्सेशन भी नहीं दे रहा है, तो वो क्या करे? ही इज गोना फॉल फॉर दिस इन्फ्लुएंस, ही इज गोना कम अंडर दिस इन्फ्लुएंस दैट दिस इज बैड, रिजर्वेशन इज बैड. नाउ हाउ डू यू टैकल दिस thought process other than uplifting him as well? यही तो मैं बोल रहा हूँ. इफ आई हैड दिस आंसर, तो मैं तो वही बोल रहा था ना, इसीलिए ये बात आया ना. Like I am just conversational wise, what could have, like क्या हो सकता है? उसको ये बिल्डअप पहले से ही देना होगा. जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहा होगा क्लास 1-2 में तो नहीं पढ़ाता है, 5-6 में पढ़ाता है ना, तो तभी उसको बेसिक समझाना, और तभी उसको उस क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा कि वहाँ से उसको रिप्रेजेंटेटिव्स दिखे, ये देख भाई ये है. बहुत लड़का लोग को क्लास 10 या 12 तक आने के बाद ही पता चलता है उसका कास्ट क्या है क्या नहीं है, ठीक है. उसको तब तक पता ही नहीं चलता है कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ. मेरे को भी पता नहीं था, बहुत लेटली पता चला. तो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे पहले कि कौन सा कास्ट बंदा कितना पढ़ाई में अच्छा है. जब तक 12th के बाद नहीं हुआ, किसको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, वो डिस्कशन था ही नहीं कभी. तो हम लोग के मन में आता है तो ये तो मेरे से पढ़ाई इसमें खराब था, इसका हो गया IIT में, मेरा नहीं हो रहा है. लेकिन शायद वो बंदा एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में सिर्फ एक ही बंदा है, वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और बड़े इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वो लोग एक मिक्सचर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. 30 जन का अगर एक बैच है, तो उस 30 जन के बैच में हम लोग जो बोलते हैं इंडिया रिप्रेजेंट करो, तो कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली, अगर वैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है तभी उस बच्चे के दिमाग में आएगा अच्छा ठीक है, अच्छा तो आगे जाके ये सॉल्व हो. वैसा अगर मैं सोचता हूँ, हाँ. बचपन से अगर उसको ग्रूम किया, उसको अचानक 12 में पता चल रहा है साला मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, तब वो कभी समझ ही नहीं पाएगा. पॉइंट. अच्छा, थोड़ा ऑन ए लाइटर नोट, आपके तो पहले यार, आपका फर्स्ट ट्रिप क्या था, आप उसके बारे में बताओ, या फिर क्या कब से प्लान था, क्या क्या होता है, इन्स एंड आउट्स, सबसे लॉन्ग लाइक जिसमें आपको, या फिर कोई ऐसा चीज जस्ट आप ब्रीफ दो, उसके बाद विल गो ऑन लाइक ऑन दैट डीपेस्ट का. क्या है मतलब आपने लाइक पहले से ये था आपको बाइक ट्रिप्स करना? अरे नहीं, ऐसे करके कभी नहीं होगा. तो पहले मतलब मेरे को घूमने का शौक था पहले से, ठीक है. मतलब मैं बचपन में बहुत कम घूमा हूँ, ठीक है. जो मतलब मैं बहुत पेरेंट्स से वर्किंग, सो दे डोंट गेट हॉलीडेज. तो समर वेकेशन में मैं अकेला बिताता था, खेल कूद के पूरा महीना, मतलब यहाँ से वहाँ घूमो, बस इधर उधर जाओ. तब भी हम लोग साइकिल लेके मतलब तब 20-30 किलोमीटर चला जाता था पूरा दिन भर. घर में कोई नहीं रहता था, बस मैं और एक दो दोस्त मिलके पूरा साइकिल चलाते थे, पूरा इधर उधर साइकिल से ही घूमते थे. घूम भी हो जाते थे, फिर अचानक पूछ के हाईवे मिल जाता है, हाँ हाईवे मिल गया तो अब घर पहुंच जाएंगे. मेरा भी सेम केस था. हाँ, तो वैसा करके हम लोग घूमता था. फिर वही वाला बात, फिर जब यहाँ से चला गया, यहाँ से मैं 8 में चला गया कोकराझार. अच्छा. फिर वहाँ पे जाके सेमेस्टर एंड्स में घर पे तो नहीं बोल सकते कि घूमने जा रहा है, तब इतना अलाउड नहीं था. तो अगर सपोज 15 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा है, तो हम लोग घर में बोलते हैं 20 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा है, 5 दिन का बीच, तो 5 दिन का गैप लेते हैं. तो हम लोग कहीं आसपास जो भी होता है घूम फिर के आते हैं. तो वहाँ पे भी फाइनल ईयर में वहाँ पे भी एक बहुत ही वाइल्ड कांड हुआ था हम लोग का. बताइए. बताना है ना, ठीक है. तो खा तो फिर क्या हुआ था, फाइनल ईयर था हम लोग का. तो मैं, मेरे एक दोस्त और फिर मेरा रूममेट और एक बंदा, हम लोग सब अलग अलग ब्रांच से. मैं इलेक्ट्रॉनिक से, एक फूड प्रोसेसिंग का, एक था कंट्रोल का. हम 3 बंदे, 2 बंदी निकल गए नेपाल. नेपाल नहीं, सॉरी, भूटान. अच्छा, बाइक पे नहीं, ऐसे नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वो था पहले ऐसा एक्सट्रीम थोड़ा सा, घर में बिना बताए ऐसा करके निकल लिए. थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर सबको सेटल कर दिया कि हाँ अगर फोन ऑन करेगा तो ये संभाल लेना. निकल गया. पहला दिन जाके वहाँ पे हम लोग ये
क्या बोलते हैं फुनसिलिंग में वो सब किया। तो फुनसिलिंग में हम लोग जो रूम लिया था वहाँ पे वीजा का कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं था। वोटर आईडी ले लो, घुसा, होटल ले लिया। फिर वहाँ पे क्या होता है तुम्हारा 8-9 बजे तक शायद तब बंद सब कुछ बंद। तो फिर हम लोग को वहीं पे एक बंदा मिला था वहाँ का ही। तो वो हम लोग को देखा कि हाँ आप लोग पार्टी वार्टी करने के लिए आए। हाँ हम लोग पार्टी करना चाहता भाई। तो लोग चलो अंडरग्राउंड ये है, अच्छा बार है, रात को खुलता है, चलो ले चलेंगे, कैरियोके वगैरह है। सही है। तो फिर आ गए हम लोग उसके साथ ही। फिर फुल एकदम नाइट एकदम स्लॉश्ड। फिर वापस आ रहा है दारू एकदम टल्ली, सब कुछ बंद। पैदल आया वापस, आके मैं चला गया अपने रूम, मेरा दोस्त चला गया और एक बंदा उसके साथ ऐसे ऐसे बैठ के हम लोग दारू वारू पी के बैल्कनी में कुछ कर रहा था। रात को शायद फूक रहा था या फिर दारू पी रहा हुआ कुछ कर रहा था। अराउंड 1-1:30 बजे ये दूसरे रूम से दरवाजा, फिर मेरा दरवाजा पूरा नॉक कर रहे हैं। उठ, वो बंदा गिर गया है। सेकंड फ्लोर था टेरेस, सॉरी बैल्कनी से। ओके शिट। दिस इज लाइक 1-2 बज रहा था शायद, नीचे गिरा हुआ है। फिर हम लोग होटल वाला को इन्फॉर्म किया। होटल वाले तब उस वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब खाली जो काम वाम करता है वो लोग था। वो लोग भी जाके हम लोग मतलब उसको जब हिला रहे हैं ना हम लोग, ऊपर से गिरा हुआ है और पानी ओवरफ्लो कर रहा था, टैंक का ओवरफ्लो करके ठीक उसके बॉडी के पास ही गिरा था। तो वो उससे पूरा स्प्लैश होके उसके बॉडी पे आ रहा है पानी सब। वो अब नीचे गिरा, वहाँ पे गिरा हुआ। हम लोग जब जैसे उसको मतलब मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकदम पागलों से चिल्ला रहा है, मतलब फटा उटा कहीं पे लगा हुआ है। बाद में पता चला उसका बैकबोन में 3 फ्रैक्चर आया था। वो अभी भी ठीक से नहीं चल पाता है। तो दैट वाज द केस। सो हम लोग उसको जैसे तैसे मतलब थोड़ा तो 3 आदमी मिला के उसको मतलब धीरे धीरे करके रास्ता मतलब होटल के सामने तक लेके आए। फिर वहाँ पे अराउंड 2:30-3 बज गया। तब पूरा एकदम सुनसान, एक भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है। सब बोल रहे सुबह तक वेट करना होगा। तो वैसे हम लोग जहाँ भी मतलब किसी के घर के सामने गाड़ी मिल रहा है वहाँ पे जाके नॉक कर रहे हैं, चलिए हम लोग का हेल्प कीजिए, जैसे तैसे निकाल दीजिए हम लोग को यहाँ से। हम लोग चले जाएंगे बंगाल, चला के जाके वहाँ पे डॉक्टर को। तो वैसा करते करते हम लोग को थोड़ा दूर जाके एक टैक्सी वाले का घर मिला। और वो अराउंड तब बज गया था अराउंड 4 सुबह ही हो गया ऑलमोस्ट। तो 4 बजे हम लोग टैक्सी लेके हम लोग आए। हम लोग आके शायद कहाँ तक आए, अलीपुर ना कहाँ तक हम लोग उस टैक्सी में आए। अच्छा। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, करना ही पड़ेगा तब तो मतलब कोई चाहिए और मतलब ऊपर से। तो फिर उनको फ़ोन किया, तो ऐसा ऐसा हुआ हम लोग के साथ। फिर यहाँ से लोअर असम से एम्बुलेंस भेजा। एम्बुलेंस में हम लोग आया, फिर सब एकदम ऐसा करके फिर उसको यहीं पे थोड़ा सा मतलब नॉर्मल करके नेक्स्ट डे गुवाहाटी। फिर अराउंड 3 मंथ्स वो वैसे ही रहा, बेडरिडन रहा। 1 सेमेस्टर लॉस हुआ उसका, हम लोग पास आउट हो गए। वो आया फिर बाद में उसका क्लियर 1-2 साल बाद हुआ क्लियर वैसे। So we are still in touch. He's married now. He has a very lovely kid. So चल रहा है वैसे. But that was the first extreme trip that I had. So that was like, you know, उसके बाद फिर कैसे हिम्मत जुटा अगले ट्रिप के लिए? उसके बाद तो मतलब वो था, देख यहाँ का खत्म हो गया। फिर मैं चला गया वहाँ पे भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में क्या बहुत ही मस्त एक ग्रुप मिला था जो मेरे जैसा ही था। मतलब हम लोग अगर टाइम मिल रहा है रात को भी कैसे भी छुप छुपा के हॉस्टल से निकलो, घूमो। हॉस्टल लाइफ का मतलब वही मेन। तो बॉक्स क्या हुआ, मेरा 2-3 सीनियर के साथ 4th ईयर वालों के साथ बहुत अच्छा बनता था। तो वो लोग जब भी गाड़ी वाड़ी निकालता था तो बोला आजा तू भी। तो हम लोग जैसे तैसे मतलब रात को निकलते थे। आपके कलिंगा यूनिवर्सिटी? हाँ, के भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर का बात कर रहा हूँ। तो हम लोग ऐसे करके नाइट आउट्स, सिर्फ वो स्टार्टिंग था नाइट आउट्स, जाते थे ऐसा करके सुबह को अराउंड 3-4 बजे फिर से वापस हॉस्टल। वाल हम लोग को ओपन कैंपस जैसा था, खाली हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल था। लाइक हॉस्टल के सामने तुम्हारा सिक्योरिटी रहेगा, वार्डन रहेगा, हर फ्लोर में वार्डन रहता है। तो हम लोग क्या करते थे, बैल्कनी टापता था। बैल्कनी में क्या होता था, ग्रिल रहता था, लेकिन तब हम लोग पतला होता था। तो ग्रिल के बीच में से, ग्रिल के बीच ऊपर से ऐसा रहता था, तो ग्रिल से नीचे वैसा करके निकल जाता था हम लोग।
तो वो सब करता, तो वैसे भी पकड़ा गया हम लोग, वैसे भी पकड़ा गया चढ़ते हुए, मतलब अंदर आते हुए वैसे भी पकड़ा गया था हम लोग। तो फिर वो सब चलता था। फिर वैसे भी हम लोग को जब फिर से सेमिस्टर ब्रेक मिलता था या फिर मेरा बैग था बहुत सारा, तो बैग के टाइम में मैं क्या किया था, एक सीनियर के साथ ही, पास आउट सीनियर, उनके फ्लैट में मैं उनके साथ ही रहने लग गया था। तो फिर वो उस समय में हम लोग का तो मतलब अगर ऑड का है तो ऑड में ही देना होगा, इवन का है तो अराउंड मुझे 4 महीना रुकना पड़ा था। तो 4 महीने में मैंने बहुत सारा जगह घूमा। ये तुम्हारा सुंदरबन के साइड में एक ये है, क्या नाम था, भीतरकनिका बोल के नाम सुना है? नहीं सुना। वहाँ पे टर्टल्स आता है। अच्छा। और वो लोग अपना एग्स ले करता है। हाँ ले करता है। तो बहुत ही मतलब गजब जगह है। तुमको मतलब पहले ट्रैक है, ये तुम्हारा नदी के किनारे किनारे अराउंड 3-4 किलोमीटर्स का ट्रैक है। फिर उसके बाद तुमको नाव लेना है, नाव लेके क्रॉस करना है, एंड दैट इज क्या बोलते हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में वो सब टर्टल्स आते हैं, एंड देयर इज अ लिटिल आइलैंड टाइप, ठीक है। तो वहाँ पे तुम टेंट्स वगैरह लेके जा सकते हो, और जो भी तुमको खाना वाना है पहले से ही तुमको कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। सो वो मेरे लाइफ का थोड़ा सा पहले मतलब टफ, थोड़ा सा मतलब अकेला नहीं था, सोलो नहीं था, हम लोग 5 तो ठीक है। मतलब फिर भी मेरे लिए वही वो था, क्योंकि मैंने अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकला। और पहला वो बात इंटरेस्टिंग, मुझे स्विमिंग नहीं आता और पानी से बहुत डर लगता है, तो वो पानी के टापू में वो वाला चीज़ था। तो वो किया पहले, फिर उसके बाद हम लोग वो कंप्लीट, वो अराउंड 2 दिन का या 3 दिन का ट्रिप था। तो फिर उसके बाद और भुवनेश्वर के इन एंड अराउंड एक ये था तुम्हारा नेशनल पार्क, याद नहीं आ रहा है उसका, बालीपड़ा शायद, बारीपोदा या कुछ उसके पास में था, ठीक है। ये बंगाल के पास में है। अच्छा। ये पार्ट, तो वहाँ पे भी हम लोग एक दिन ऐसे ट्रैक के लिए चला गया। और एक इंटरेस्टिंग था जिसमें बहुत फिजिकल मेहनत लगा था मेरे को। हम लोग मजाक में एक दिन, ये 4th ईयर में था या 3rd ईयर में था, तो सीनियर लोग बोला कि ये शिवरात्रि था, शिवरात्रि में वो करते हैं ना, शिवरात्रि नहीं, बोलबम में ये जो चलता है ना, वो तो बिहार में कहीं नहीं, बिहार में, लेकिन यहाँ पे भी करता है, फ्रॉम कटक हर एक जगह पे करता है, ठीक है। सो वो लोग बोला हाँ ऐसा चला है, बोलबम हम लोग ये करेंगे, जाएंगे और वापस आएंगे। मेरे को लगा हाँ ठीक है, गाड़ी में जाएंगे वापस भी आएंगे, वैसे करके मस्त चलो। वो लोग बोला कि थोड़ा बहुत चलना होगा, चल लेंगे, क्या ही है, चलना ही तो है। तो वो चला। फिर बाद में वहाँ पे जब जाके पहुँचा, मैं तो जा रहा हूँ भुवनेश्वर से कटक 79 किलोमीटर्स या 83 किलोमीटर्स कोई वैसा है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग रुका, वहाँ पे रुक के पानी वानी लेना पड़ता है कुछ, मतलब पूजा वूजा करके, तो पूजा वूजा किया हम लोग ने, फिर पानी वानी लिया। मतलब वाया कार गए थे? हाँ, मतलब गाड़ी से नहीं, जाते वक्त गाड़ी से गए, हाँ। लेकिन वहाँ से फिर पानी वानी लेके हम लोग को पैदल आना था। तो गाड़ी तो वहाँ पे हम लोग छोड़ दिया उसको, मतलब दूसरे भाड़े का। ओके। तो वो 79 किलोमीटर्स जो मेरा चलने का एक्सपीरियंस है वो मैं कभी नहीं भूलता। इतना ज़्यादा पेन जिंदगी में कभी नहीं मिला। शौक है ना बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा शौक है, और मतलब तो सोच नहीं सकता कितना पेन है। तो वो मेरे को याद है, वो पेन बहुत इलेबोरेटिव एक स्टोरी है, वो एक अलग पॉडकास्ट बन जाएगा शायद। तो मैं वो पेन हमेशा याद रखता हूँ जब भी टफ सिचुएशन में होता हूँ, बॉडी को लेके फिजिकली। तो वो चीज़ याद करता हूँ कि वो दर्द याद कर, उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स कि हाँ तू ये कर सकता है, अगर वो किया है तू, हाँ एग्जैक्टली दिस यू कैन। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, ड्रैग करना पड़ता है एक इंच पैर का, नॉन स्टॉप। रुका यार, रुकने के बाद रात में कहीं पे रुका, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, इट्स नॉट लाइक कहीं पे रूम लेके या नहीं वैसे नहीं, जस्ट स्टॉप एंड देन वॉक, वैसे करके। तो और पहले किया ना, और इट्स बैरफुट, ऐसा नहीं कि चप्पल जूता पहन के नहीं, हमको तो आदत भी नहीं है ना हमारे पैरों को। So that kind of physical pain। उसके बाद मतलब मैं जब भी कोई भी टास्क होता है या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि साल में एक बार ट्रैक करूँ, बॉडी को चैलेंज करके मजा आता है। ठीक है, आप कुछ करते हो लाइक रेगुलर फिटनेस के लिए? महीने में 1-2 बार ये करता हूँ मैं, मतलब स्किपिंग करता हूँ। उससे थोड़ा सा ये भी रहता है तुम्हारा सर्कुलेशन, हार्ट का वो भी। तो वही, ऐसा कुछ फिटनेस का कुछ नहीं है, बस साल में एक बार ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, वो है। उसके बाद और कौन कौन सा ट्रैक था? ट्रैक इजी ट्रैक ये वाला,
तुम्हारा, बल्कि बहुत सुंदर है वो, क्या नाम है इसका, टाइगर्स नेस्ट। समवेयर इन बंगाल राइट? नहीं, भूटान। ओके, जैसे मॉनेस्टरी हाँ, उसमें है। दूर से दिखता है, दूर से दिखता मतलब है। रोड से नहीं दिखता है। अराउंड 3 घंटे का ट्रैक है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, और इतना हार्ड भी नहीं है। लास्ट लेग हार्ड है थोड़ा सा। तो वहां तक सपोज, जैसे मेरे को कुछ नहीं पता ट्रैकिंग के बारे में भी, टाइगर्स नेस्ट के बारे में भी, मुझे क्या क्या पता रहना चाहिए इफ आई वांट टू परस्यू इट एज माय फर्स्ट ट्रैक? फर्स्ट ट्रैक थोड़ा सा अच्छे शूज। तो लाइक रेंट पे नहीं मिलता क्या? नहीं, वहाँ पे रेंट पे नहीं मिलेगा। ओके। शूज अराउंड तेरे को तू कंफर्टेबल होना चाहिए उस शूज में, और स्लीपरी नहीं होना चाहिए शूज। वही। और फिर खुद को डिहाइड्रेट रखने के लिए ज़्यादा पानी नहीं, 1 लीटर, या फिर अगर वो ORS वगैरह ले सकते हैं, अच्छा है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स बस, और खाली इतना ध्यान में रखना है कि मैं कर लूँगा। 3 hours इट्स लाइक मतलब बहुत स्टीप है क्या? नहीं है, बोल रहा हूँ इजी। पहला बिगिनर लेवल नाक काटी भी मत करो, पहले वही करो। उसके बाद आओ नाक काटी देन तो हो जाएगा, तब तो हो मच जाएगा। टफ, नाक काटी इज मच टफ। ये जो लास्ट का लेग है, ये स्टेप, ये बहुत खतरनाक है, और तुम नीचे उतरते वक्त भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं तो मेरे सामने 2 बंदा गिरा। एंड अभी तो लाइक इट्स लाइक क्लीन कर दिया गया है पूरा। अर्लियर इट्स लाइक जंगल था, तब पकड़ने के लिए भी कुछ था। हाँ एग्जैक्टली, जो वो स्टीप स्लोप है टिल देयर्स लाइक थोड़ा सा प्लेन एरिया, लाइक यू हैव टू रेस, लाइक यहाँ से यहाँ एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, पेड़ टू पेड़ अप, पेड़ टू पेड़। वैसा कुछ नहीं, आराम से है, तुम जाओ। और मतलब बहुत पिक्सेल है, बोल तुम अगर फुल चेक नहीं भी कर पा रहे, मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे कितना अराउंड 500 स्टेप्स है। अगर वो तुमको स्किप भी करना है, तब भी तुमको उस पॉइंट से जो व्यू मिलेगा, मतलब worth it। तो मजा है, वो वाला ट्रैक सबको करना चाहिए। लाइक अपना गाड़ी लेके वहाँ पे जा सकते हैं आराम से। अभी तो शायद बंद है, शायद कुछ अभी बंद है। कोविड की वजह से। तो मतलब हम लोग को भूटान जाने के लिए वीजा का जरूरत नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है, खाली पासपोर्ट है तो बहुत अच्छा, नहीं तो तुम्हारा बेसिक आधार कार्ड, वोटर ID से भी काम चल जाता है। पहला तुमको परमिट फोन शिलिंग में लेना है। फोन शिलिंग में तुमको अप टू थिम्फू तक अलाउ करेगा। थिम्फू, पारो, ये सब टाइगर ने सब कुछ मिल जाएगा। थिम्फू के बियॉन्ड जाने के लिए थिम्फू में ही एक फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे जाके अप्लाई करो। वहाँ पे जाके अप्लाई करने में अराउंड 2-3 घंटे में तुमको पास मिल जाएगा। उसको लेके निकल जाओ फिर पुनाखा वगैरह के लिए। पुनाखा के आगे भी जा सकते हैं। और So you have traveled like all आई हैव ट्रेवल्ड Bhutan. नॉट टिल मिड भूटान, पुनाखा, Bhutan. जो पहले कैपिटल हुआ करता था उसका। Okay. पुनाखा मतलब एक पूरा एकदम लेजी सा Laid back town. लेड बैक टाउन है। जैसे हम लोग को यहाँ पे ये सब चलता है ना, जुआ चलता है, दिखता है ना, तीर का नहीं, वो जो ये घुमाता wheel का, ना, व्हील का वो घुमाता है, वहाँ पे वो सब चलता है। तुम्हारा स्क्रीन पे Okay. एक बड़ा सा टीवी लगा होगा, वहाँ पे एक एंड्रॉइड ऐप से चला रहा होगा टैबलेट पे, तो आदमी लोग उसके ऊपर बीट करते हैं। What else? बाइक पे लाइक आपको लॉन्ग टूर का हैबिट ये 200 लेने के बाद लगा। सबसे ज्यादा लॉन्ग कौन सा है अभी तक का? लाइक ऑन ए सिंगल? ये अभी करके आया रिसेंट, 1400 in how many days? 7 days, 6 days, Like total 1400? Yeah. Total 1400 in 6 days. So that's like 250 per day, 250 इतना तक जाना हाँ। पड़ता है। Where was it? अरुणाचल, वेस्ट कामेंग एंड तवांग। And आपका like you had your own like tents वगैरह अपना खुद का था? नहीं, हम लोग जाके वहाँ पे hotels and camping नहीं किया आपने? कैंपिंग नहीं किया। Okay. कैंपिंग के लिए यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा सामान, वो सामान कैरी करने के लिए। एंड लाइक अभी तो बहुत सारे ऐसे वो हो गए ना, कंपनीज हो गए, ट्रिप्स करवाते हैं, टूर्स करवाते बट देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा नो। हैं। लाइक होटल से ज्यादा ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा तुम्हारा। और फिर तुमको उनके साथ पहले से ही कांटेक्ट में रहना होगा। हम लोग मतलब अगर सपोज आज उस जगह पे नहीं जा पा रहे हैं, तो बीच में कोई छोटा सा स्टॉप ले लिया, गाड़ी खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, तो रुक जाते हैं वहीं पे। जरूरी नहीं है कि हाँ यहाँ पे बुकिंग करके रखा है, पहुँच नहीं होगा, नहीं तो पैसे चले जाएंगे। तो वो वाला हेडेक नहीं है, जहाँ पे जैसे मिल रहा है। हाँ, तो चलो लाइक गूगल मैप पे डाल दिया और डेस्टिनेशन निकल गया। पहले थोड़ा सा रिसर्च कि देख मेरा क्या है, मैं
पहले किसी लोकल से बात कर लेता हूँ वहाँ पे कि ऐसा ऐसा हम लोग यदि जाना चाहता है, कहाँ पे अगर स्टॉपेजेस लिए, कौन सा साइट्स में रूट से जाना होगा, किस साइड, वो सब मैं पूछ लेता हूँ। फिर उसके बाद बाकी तो गूगल है ही। पर कभी कभी गूगल भयंकर धोखा देता है। वो है, कभी कभी बहुत भयंकर देता है। और आगे क्या प्लान है? आगे मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा वैसे कुछ मैंने बना के नहीं रखा। ये सोचता हूँ कि मतलब कुछ ऐसा एक दो चीज़ है जो कि बकेट लिस्ट वाला चीज़ है। ये वाला मेरे को गुलमर्ग में जाके स्कीइंग सीखना है यार। एक 15 दिन का कोर्स आता है वहाँ पे गुलमर्ग में। कॉस्ट अराउंड 40,000 आई गेस। तो जमा कर रहा हूँ, जिस दिन हो जाएगा I'll go। उस दिन आप निकल जाओगे। हाँ। इतना स्पॉन्टेनियस होना चाहिए एटलीस्ट इस एज पे। आपको क्या लगता है हमारे पेरेंट्स का जो जनरेशन था, लाइक अभी लास्ट लेग में हम लोग पॉडकास्ट के, आई एम श्योर कि आगे और बहुत सारा आएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, क्या उनके टाइम पे ये प्रायोरिटी नहीं थी, या फिर उनके पास ये क्या उस टाइम पे क्या रीजंस है? या तो फिर उस टाइम पे ये चीज हाइप में नहीं था, या फिर नहीं पहले से ही सब कुछ था। हम लोग बहुत लेट सीखे हैं सब। मेरे पेरेंट्स के ज़माने में भी था, तेरे पेरेंट्स के ज़माने में, सबके ज़माने में, बट उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उन्होंने वो सब कंप्लीट किया, इसलिए आज मैं ये कर पा रहा हूँ। मैं प्रिविलेज्ड हूँ यार। ये बात तू जैसे एक्सेप्ट करता है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं प्रिविलेज्ड हूँ। तो अगर मैं आज 9 to 5 कर रहा होता, तेरे साथ बैठ के ये नहीं कर रहा होता, और मैं ये सब घूम भी नहीं पाता, तो मैं मानता हूँ कि हाँ थोड़ा सा प्रिविलेज्ड हूँ। बट उसके साथ मैंने कुछ डिसीजंस भी लिए हैं अपनी लाइफ में टू मेक दिस हैपन। वो जैसे कि लाइक से इफ यू वुड बी इन 10 years नहीं, आप 5 साल पीछे पहले अपने लाइफ में जाओगे, अब क्या क्या चीज सीखते हो कि ड्रास्टिक, या फिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से यू कैन लिव द लाइफ? इन्वेस्टमेंट सही करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपका क्या लाइक फर्स्ट स्टेप कहाँ से था? इन्वेस्टमेंट मैंने ऐसे नॉर्मल बिजनेस से ही स्टार्ट किया, मतलब पैसे से ही पैसे को बनाओ। जैसे लाइक वो लेंडिंग आउट मनी, हाँ थोड़ा बहुत, एंड मोर ओवर व्हाट यू कॉल इट, रीसेलिंग स्टफ। Okay. You suppose you need something, you know that he is the guy who can get me that thing. So I don't have to invest actually the money. It's your money, but I'll take a cut and I'll get you the thing. Okay. It's जितना आपका नेटवर्क अच्छा, it's better for you. Okay. So that kind of thing you अगर मैं मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता ना, तो उस चीज़ में बहुत फ़ायदा है। एंड यू क्रिएट ए नेटवर्क जो तुम्हारे लिए मतलब वो पूरा लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा वो वैसे करेगा, क्योंकि आदमी को ये सब ज़रूरत होते रहता है। एंड देन विथ टाइम विल फिगर आउट स्टॉक्स, यू विल फिगर आउट FDs, एंड यू विल फिगर आउट ये सब म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके तो इन्वेस्ट करेगा, दैट्स ऑल। ये पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी आई थिंक लाइक मुझे तो बहुत सारा नॉलेज का ज़रूरत है। इसलिए आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अभी तू जिस एज में है तेरे को ये सब का इतना सोचने की जरूरत नहीं। जो तेरे को मज़ा आता है, जो तेरे को खरीदने का मन करता है, जो पहनने का मन करता है, जो खाने का मन करता है, स्पेशली खाने पीने का जो मन करता है, वो सब कर लिया कर। नहीं मिलेगा बाद में चांस, बाद में इट वाज लाइक दिल में ही नहीं आएगा वो सब करने का, नहीं आएगा, वो सब कर लिया कर। ग्रेट। आपको बात करके कैसा लगा? मैं को मज़ा आया। वापस करोगे? बैठते हैं कभी, बैठते बिल्कुल बैठते। लेट्स जस्ट होप कि मुझे बताइए, बहुत लाइक नीश ऑडियंस के लिए है पॉडकास्ट, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, एंड बट जो सुनता है लाइक आई एम लिटरली हुक्ड। हाँ मेरे को पता है, मैं सुनता था पहले, बट अब भी मतलब टाइम भी नहीं मिलता, और सुनते सुनते सो जाता हूँ मैं। ये बहुत इशू है, थक जाता हूँ यार, 11-12 बजे तक ना बॉडी शट डाउन हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेके, पावर नैप लेके कोशिश करो कि कुछ अपना अलग साइड से करता रहूं। और मैं ट्राई करता हूँ कि कभी कभी रील बनाने के लिए, तू बोलता है ना रील अच्छा बनाता है। हाँ बनाते हो आप, अच्छा, बहुत अच्छा तो बनाते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि बनाऊं, लेकिन उसका भी टाइम नहीं मिलता यार। यू कैन आउटसोर्स इट। अच्छा हाँ होगा सर, यू कैन लिटरली आउटसोर्स इट, लाइक नो इट्स वेरी tedious job, like to create content and to manage it. If you're trying to do it both at the same time, both of these parts will suffer. But on that note,
থ্যাংক ইউ সো মাচ আকাশ রায় सर दादा थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय प्लेजर ऑल आप लोग जो भी सुन रहे हो अगर यहाँ तक पहुँच गए इट्स अ बिग डील फॉर मी एंड थैंक यू एंड गाइस ही इज़ अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर. मैं इसको आज से शायद 2-3 साल पहले से जानता हूँ. सो मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ आप कांटेक्ट में रहते हो और मेरे जैसा बंदा मैं मतलब इसको पता होगा मैं बहुत ही स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्शन नहीं रखता. तो अगर मैं इसके साथ क्योंकि इसका मुझे कंटेंट अच्छा लगता है तो जो भी कर रहा है मैं इसको सपोर्ट करता हूँ. करो अच्छे से करो और है इसका फ्यूचर अच्छा है इसमें अगर ये अच्छा से करता रहेगा तो. थैंक यू सो मच सर लाइक मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू. चलो गुड नाइट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात. তো এয়াই আছিল আজিৰ এপিছ'ড. আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই এপিছ'ডটো ভাল পাইছে. যদি ইমান দূৰ শুনিছে তাৰ কাৰণে অসংখ্য ধন্যবাদ. আৰু আমি যদি এই কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক এটাই মাত্ৰ ৰিকুৱেষ্ট, আমাক ছাপোৰ্ট কৰক. আপুনি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে. দ্যাটছ ইট. বহুত মটিভেশ্যন পায় আৰু এটা ৰিকগনিশ্যন পায়. সেইটোৰ আশাৰে আজিৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ. উভতিম নেক্সট উইক আকৌ এটা নতুন এপিছ'ড লৈ. ধন্যবাদ.